So actually, I've never told you, and honestly, there was no need for it also till now, that I'm a vegetarian. And why am I telling you this today? Because the book that we are going to talk about today is also named The Vegetarian. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहाँ पर आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है द वेजिटेरियन बाय हैंग कैंग और इस बुक को 2024 का नोबेल प्राइज मिल चुका है इन लिटरेचर. So the vegetarian by Hang Kang is the story of a young woman. Her name is Yong Hae, and she lives in South Korea. And one fine day, she just decides to turn vegetarian. She decides to not eat meat, and that decision brings a storm in her life. कहानी ना तीन लोगों के पर्सपेक्टिव से हमें योंग हे की पूरी सिचुएशन समझाती है. पहला पर्सपेक्टिव जो है वो है योंग हे के हस्बैंड मिस्टर चोंग का. दूसरा पर्सपेक्टिव है योंग हे के ब्रदर इन लॉ, मतलब उनकी सिस्टर के पति जो हैं जीजा, उनका पर्सपेक्टिव है जो कि एक आर्टिस्ट है. और तीसरा पर्सपेक्टिव है योंग हे की बड़ी बहन, उनकी जो सिस्टर है इन हे, उनका. The first part is called The Vegetarian. It tells us the story of Yong Hae through her husband, Mr. Chong's eyes. That, how and what he feels when, his wife tells him that she's not going to eat meat for the rest of her life and starts throwing every non-veg item in the house. And this decision obviously is not liked by, her husband, but also is not appreciated by her family as well. This doesn't go down well with her family. And one fine day in the dinner table, they try to force feed her a non-veg item. और योंग हे जो है घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और वो सोचती हैं कि सब लोग उन्हें ज़बरदस्ती मीट खिलाएंगे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो वो डर के मारे अपनी नस काट लेती हैं. And immediately she's rushed to the hospital. She's hospitalized. There she starts losing a lot of weight, and also all her closed ones, all her family members feels that she's not just only losing weight, she's also losing her mind. And looking at her condition and everything else, her husband finally, Mr. Chong, decides to divorce her and moves on. दूसरा जो पार्ट है द मंगोलियन मार्क, वो योंग हे की कहानी हमें बताता है उनके ब्रदर इन लॉ, मतलब उनके जीजा के पर्सपेक्टिव से, जो कि एक आर्टिस्ट हैं. और वो एक मंगोलियन मार्क को लेकर इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं योंग हे से. सो मंगोलियन मार्क ना एक बर्थ मार्क होता है जो आपकी बॉडी में कुछ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद बर्थ के कुछ टाइम बाद चला जाता है. लेकिन योंग हे की बॉडी में वो मंगोलियन मार्क जो है आज भी है, वो गया नहीं. और इसी मार्क से वो इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके ब्रदर इन लॉ दैट वो अपनी ही साली से, यानी कि अपनी सिस्टर इन लॉ से प्यार करने लगते हैं. One fine day, he just asks her to become a model for his artwork, where he's supposed to paint her body, naked body, with flowers and leaves and make a beautiful artwork out of her body. And also have some intimate moments with another naked body, painted similarly with a lot of flowers and plants to make it a very beautiful combination. Yong Hae agrees to it. और कुछ ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं, जो कि इनकी बहन, योंग हे की बहन इन हे, अपनी आंखों से देख लेती हैं. और योंग हे अपने ब्रदर इन लॉ से इन्वॉल्व हैं, ये बात इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, बिकॉज इन्हें अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को अपनी ही सिस्टर के साथ देख लेती हैं. और वो अपनी सिस्टर के लिए इतना घबरा जाती हैं कि वो मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज बुलाती हैं और अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे देती हैं. The third part is called The Flaming Trees. It offers the deepest view, of Yong Hae's story through her sister In Hae's eyes. Because, it shows what kind of childhood In Hae saw. She was an elder sister, how she could have protected Yong Hae. बिकॉज योंग हे और इन्हे के जो पापा हैं वो बहुत ही गुस्से वाले थे और बचपन से ही वो योंग हे को मारा करते थे. और यही एक मेंटल ट्रॉमा
योंग-हे के दिमाग में हमेशा के लिए रह गया। एक बार का इंसिडेंट उन्हें याद आता है हॉस्पिटल में, क्योंकि अब वो मेंटल हॉस्पिटल में होती हैं और दिन ब दिन लोगों को लगता है कि वो मेंटली जो है अनस्टेबल होती जा रही है, बिकॉज शी स्टॉप्स ईटिंग फूड, फॉरगेट अबाउट नॉन-वेज, शी डजंट इवन ईट वेजिटेरियन फूड, शी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ ट्री दैट शी डजंट नीड फूड। सो यू नो शी गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड, जहाँ उनकी सिचुएशन बहुत खराब होती जाती है, उन्हें फोर्स फीड किया जाता है वहां पर भी थ्रू पाइप्स एंड एवरीथिंग, एंड हर दिन उनकी कंडीशन जो है खराब होती जाती है। और उनको एक बचपन का ट्रॉमा बार बार याद आता है कि शायद उनके नॉनवेज से नफरत करने का कारण ये भी हो कि एक बार बचपन में उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था, एंड उनके जो पिता हैं, उनके जो पापा हैं, वो इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने उस कुत्ते को अपनी कार या बाइक के पीछे इतना दौड़ाया कि जब तक वो एग्जॉस्ट होके, जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। और जब वो कुत्ता मर गया तो उसका मीट बना के सेलिब्रेट किया उन्होंने, पार्टी रखी अपने घर पे, और वो मीट उन्होंने योंग-हे को भी खिलाया। And this deep mental trauma somewhere settles inside Young-hae, and that is the reason she starts behaving in this strange way that maybe the world finds strange, but maybe it's not strange to her at all. The Vegetarian is not just a story of someone making a choice to become a vegetarian, like somebody quitting non-veg. No, it's much deeper than that. For Young-hae, the lead of this story, this is an act, maybe an act against the society norms, an act against her family, like the way she's always been told, she's been kept like a prisoner, she's always been told what she should do, but never asked what she wants to do. ये उनकी छोटी सी बगावत है इस दुनिया के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ। एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो उन्हें अब तक इतना परेशान करता है कि उनके सपनों में आता है वो कुत्ता जिसका मीट उन्हें खिलाया गया, वो कुत्ता, उसके लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो उनके सपनों में आता है, उन्हें हॉन्ट करता है। इस वजह से वो एक ट्री बन के रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है शायद वही तरीका जो है दुनिया में रहने का ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस बुक यू एक्चुअली स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग वेदर Young-hae is losing her mind, or maybe we as society, we as so-called normal people, maybe we are not able to understand her perspective. So I would definitely recommend The Vegetarian by Han Kang. There is a reason it has won, the Nobel Prize in Literature for 2024, because the story has a deeper meaning. And for all those जिनको ये लगता है ना कि ये बुक जो है नॉनवेज के खिलाफ है, या फिर ये बुक आपको ये बताएगी कि आपको क्यों वेजिटेरियन बन जाना चाहिए, नॉट एट ऑल। नोवेयर इन द बुक इट इज मेंशन दैट being vegetarian is a better choice of life, और non-veg खाने से हेल्थ अच्छी नहीं होती है या वेज खाने से हेल्थ अच्छी होती है। There is not a single word against eating meat. सो प्लीज इसके नाम पे मत जाइए अगर आप इसको सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। दिस डजंट टेल यू टू क्विट मीट एट ऑल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है योंग-हे के दबे हुए अरमानों का, या एक चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझाने का कि उनके दिमाग में क्या चला। That is why she decided to turn vegetarian. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये कोई और सिचुएशन भी हो सकती थी। So please read this if you like reading these kind of books, and you are not reading just because of the name The Vegetarian. So please don't do this. Definitely read this book. It is worth your time. So I hope you like my review of The Vegetarian by Han Kang. और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है then please make sure आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जितने भी आपके बुक लवर फ्रेंड्स हैं। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। Till then, please keep reading and please keep smiling.